Is my screen visible to you? Yes, visible. Okay. So let's see. So once again, welcome to this day two session. So I hope what we are actually previously discussed, you must remember, right? You remember what we are discussing last days? Last class is discussing topology. Yeah, but Uh, topology, we are not discussing last session in topology. In last session, we are discussing some basic thing like what is network, what is networking, and what is internet, like that. We are not considering the past day is at day two. Okay. 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 So in this particular session, we are going to discussing about types of network. Okay. Types of Okay. network. As I previously told you, they are in industry. If you are going as a network engineer inside a company, if you are joining as a network engineer within a company, so you are facing multiple network type. Like you are facing IT network, there is a on-demand network, there is a server network, there is a printer network, there is a let's say IoT network. There are multi types of network inside a organization. But today we are not discussing these particular things. Today we are actually discussing what? Today we are discussing types of computer network. Okay. So can you just told me Rajat, computer network is digital network or analog network? Digital network. Yes. So in our today's agenda is types of computer network. Like whenever we are talking about computer network, you may hear that there was a LAN, there was a MAN, there was a WAN, there was a PAN. Did you hear about this term? Like I have created a LAN, I am a LAN engineer, I am a MAN engineer, I am a WAN engineer. These are different role provided to a different engineer. Instead of that, there are multiple networks like LAN is a network, MAN is a network, WAN is a network, and PAN is a network. Let me uh, re told you that in हिंदी लैंग्वेज अगर मैं आपको बात करूँ ना तो मल्टीपल टाइप्स की नेटवर्क होती है। हमने प्रीवियसली बात किया था अगर आप कंपनी में जा रहे हो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको वहां पे मल्टीपल नेटवर्क देखने को मिलेगी जैसे कि डेटा नेटवर्क हो सकता है या फिर जिसे हम आईटी नेटवर्क कहते हैं आईओटी नेटवर्क आपको मिल सकता है प्रिंटर नेटवर्क मिल सकता है सर्वर नेटवर्क मिल सकता है टैप लाइब्रेरी नेटवर्क मिल सकता है देयर आर इनसाइड ए कंपनी और ऑन डिमांड नेटवर्क भी आपको मिल सकता है जो कस्टमर ने खुद खुद से बनाई है अपने एक नेट कंपनी के अंदर इज इट राइट और नॉट Yes. Right. so out of that today we are discussing what we are discussing types of computer network. Okay, what we are discussing today? Today we are discussing types of computer network. There is we are discussing already. There are multiple types of computer network. Like we are taking only four. Like we are taking LAN, MAN, WAN, and PAN. Out of that, there are multiple network like CAN, WLAN. There are multiple network. But if you understand this four kind of network thoroughly, then you can understand the rest of. ओके अगर आप इस चार को समझ गए ना क्या है कैसे काम करता है क्या रूल रेगुलेशन इनमें होती है सो बाकी की जो रेस्ट नेटवर्क है ना वो आप भी समझ जाओगे क्योंकि इनकी सब जैसे हमारी पेरेंट है पेरेंट के नीचे हमें सब चाइल्ड है उनके या फिर चाइल्ड कह सकते हो हमारे बच्चों को हम क्या कहेंगे सब चाइल्ड कहेंगे सो लाइक दैट लैन की ही एक्सटेंडेड वर्जन है डब्ल्यू लैन हमने लैन पे बेसिकली क्या किस में काम करते हैं केबल्स में काम करते हैं अगर मैं वाईफाई में काम करूंगा दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू लैन सो अगर आपने इन टर्म को समझ लिया देन यू कैन मास्टर ऑन रेस्ट टॉपिक्स लाइक इज इट राइट shall we proceed Yes. okay so today we are actually doing overview of computer networks so let's discuss in our first slide we are discussing about introduction to network category if I am talking about network category there are four types of network category we are discussing like local area network metropolitan area network wide area network and last one is personal area network if I am talking about local area network the short form is LAN LAN stand for L stand for local, A stand for area, N stand for network. लोकल एरिया नेटवर्क इसके नाम से ही जैसा हमें पता चल रहा है कि ऐसा नेटवर्क जो मेरी लोकली हो समझ गए लोकल मतलब समझ रहे हो ना आप जो Yes. Yes. आपके पास ही है आपके नियर बाय में है या फिर आप वहीं पे हो दिस इज कॉल्ड लोकल सो ऐसी टाइप की नेटवर्क जो मेरी पास है मेरी मैंने खुद ने बनाया था या फिर खुद मैनेज कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क डेफिनेशन कैसे बना सकते हो
LAN connects device with limited area like home, office provide high speed communication. अगर कोई भी इंटरव्यू हो या फिर आप नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हो, हमेशा याद रखना आपकी लैन नेटवर्क है, आपकी WAN नेटवर्क है, आपकी फैन नेटवर्क है, या फिर आपकी मल्टीपल टाइप्स की, लेट्स से मेरे पास 10 टाइप की नेटवर्क है, लेकिन आउट ऑफ दैट मेरी जो लैन नेटवर्क रहेगी ना उसकी स्पीड सबसे हाई रहेगी, सबसे हाई स्पीड रहेगा। क्यों? क्योंकि लैन जो होता है वो बहुत ही कम एरिया में बनता है, शॉर्ट डिस्टेंस को लेके यूज करता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ 1 किलोमीटर के अंदर आपकी लैन की कैम बना सकते हो आप, 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि मेरी जो कॉपर की केबल होती है, आपने कॉपर केबल देखा होगा, उसकी जो लेंथ होती है वो 100 मीटर ही होता है, 100 मीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो मुझे पूरी काम इस 100 मीटर या फिर 1 किलोमीटर के अंदर ही सब कुछ मुझे करना है। So that's why our LAN network is much more high speed in comparison to WAN। अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ ना तो इंटरनेट आपको स्लो लगेगा जब आप LAN को यूज करोगे। तो कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो अभी हम देखेंगे। पहले डेफिनेशन को समझते हैं। LAN कनेक्ट डिवाइस विद इन लिमिटेड एरिया। यहाँ पे आपको एक टर्म बता रहा है या फिर कीवर्ड बता रहा है लिमिटेड एरिया। लाइक ऐसा नहीं कि आपने एक कंप्यूटर को लेट से अहमदाबाद में आपकी एक कंप्यूटर लगा हुआ है, दूसरी कंप्यूटर आपने लगा दी कहाँ पे, लेट से चेन्नई में लगा दी। दोनों के बीच आपने क्या किया है कि कोक्सिकल केबल या फिर आप ऐसा कह सकते हो RJ45 केबल कनेक्ट कर दी। आपने अभी कह रहे हो ये मेरी लोकल एरिया नेटवर्क है, इट इज नॉट योर लोकल एरिया नेटवर्क। पहले तो ये नेटवर्क चलेगा ही नहीं क्योंकि आपने केबल गलत चूज कर रखा है। आपने ऑप्टिकल फाइबर लगा भी दी फिर भी दिस इज नॉट ए लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, सो लोकल एरिया नेटवर्क की जो सबसे बड़ी चीज है, इट इज लिमिटेड एरिया। दैट्स मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क कैन कवर लिमिटेड एरिया। ये एक बिल्डिंग के अंदर आप इसे बना सकते हो, ये एक ऑफिस के अंदर आप इसे बना सकते हो। लाइक एक बिल्डिंग के अंदर आपके पास एक प्रिंटर है, उस प्रिंटर को चलाने वाले 10 यूजर है। मेरे पास अगर यहाँ पे नेटवर्क में नहीं बनाऊंगा, मेरे पास दूसरी दूसरी प्रोसेस क्या है, फिर दूसरी मोड ऑफ एक्सेस द सर्वर क्या है, मैं सर्वर का जो प्रिंटर की ड्राइवर है ये 10 यूजर के सिस्टम पे डाल दूं, और केबल, एक केबल को हर एक में कनेक्ट कर दूं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, मतलब एक ही प्रिंटर से, प्रिंटर के साथ आपकी एक ही केबल रहेगा। एक बार ये लगाएगा अपने लैपटॉप में प्रिंट देगा, दूसरी बार ये लगाएगा अपने लैपटॉप में प्रिंट देगा, तीसरी बार ये लगाएगा प्रिंट देगा, चौथी बार ये लगाएगा प्रिंट देगा। दिस इज द ट्रेडिशनल वे। लेकिन अगर इसे मैं लैन पे करूँ, सेम प्रिंटर आपके नेटवर्क में बैठा हुआ है, आपकी लैन यूजर भी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी क्या है, मेरे पास एक नेटवर्क डिवाइस है जिसको हम स्विच कहते हैं। मेरे जितने भी लैन यूजर है वो ये स्विच से कनेक्टेड रहेंगे, और स्विच के साथ मेरी प्रिंटर भी कनेक्टेड रहेगा। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट ए लोकल एरिया नेटवर्क। हमेशा याद रखना जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही होता है। लाइक 1 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकता। इट इज ए लिमिटेड एरिया, इट हैव द लिमिटेड एरिया। लाइक ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर की लिमिटेड एरिया है, मैं 2 किलोमीटर बढ़ा के थोड़ी सी लेके जाऊंगा, नहीं कर सकते आप। इट इज नॉट पॉसिबल। जब भी बात आपकी लोकल एरिया नेटवर्क की आएगी, इट इज लिमिटेड एरिया, जिसे हम नॉर्मली अगर टेक्निकल लैंग्वेज में आप बोलोगे सर्टन जियोग्राफिक एरिया। जियोग्राफिक एरिया बेसिकली क्या होता है, फिजिकल एरिया। सो ये लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से केबल डाल दी पाकिस्तान तक, यहाँ से केबल डाल दी यूके तक, नहीं, अब नहीं डाल सकते लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क बनाने की जो रूल है, वो रूल क्या है, 1 किलोमीटर के अंदर ही सब कुछ आपको करना पड़ेगा। समझ गए लोकल एरिया नेटवर्क? यस। लोकल एरिया नेटवर्क को लेकर कोई डाउट है तो कुछ पूछ सकते हो आप। नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद आती है मेरे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस इज वन ऑफ द, ऐसे कह सकते हो लैन और वान के बीच ये फॉल करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अगेन जैसे नाम बता रहा है मैन, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है मैन। एम स्टैंड फॉर मेट्रो, ए स्टैंड फॉर एरिया, एन स्टैंड फॉर नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल अभी डेफिनेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे कह रहा है क्या, men link multiple land across cities, enabling borders, communication and multi-politary play। अभी सिंपल सी बात समझते हैं। जैसे ये एक सिटी है, इस सिटी का नाम क्या है, अहमदाबाद। ठीक है, ये दूसरी एक सिटी है, जैसे इस सिटी की नाम है मेरे पास क्या, लेके चलो इस सिटी के नाम है वाराणसी। कुछ भी लेके चल सकते हो वैसे तो। इस वाराणसी, ये जो अहमदाबाद लोकेशन है ना, इसमें आपकी एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर आपने दो चार सर्वर लगा रखा है। ठीक है, वो सर्वर सारे आपस में कनेक्टेड है, और यहाँ पे कुछ यूजर भी है, यहाँ के स्विच है, यहाँ के खुद की एक लोकल एरिया नेटवर्क आपने बना दी अहमदाबाद की एक ऑफिस के अंदर। वही सेम, लेट्स से ऑफिस का नाम है नेटवर्कर। ठीक है, नेटवर्कर की ऑफिस है।
अब ये नेटवर्क वालों की एक दूसरी एक ऑफिस है, कहाँ पे, वाराणसी में। वहां पे भी सेम, यहाँ पे दो तीन सर्वर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी यूजर बैठे हुए हैं, यहाँ पे चला रहे हैं वो अपनी लोकल एरिया नेटवर्क। तो वाराणसी के लिए अपनी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है, और अहमदाबाद के लिए अपनी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, जो अहमदाबाद वाली सर्वर है ना, उनको वाराणसी से मैं एक्सेस कर पाऊँ, और वाराणसी वाले जो यूजर है ना, वो अहमदाबाद से एक्सेस हो जाए। इन द सेंस, जो अहमदाबाद वाले जो यूजर है, वो वाराणसी को एक्सेस कर पाए, वाराणसी वाले जो यूजर है वो अहमदाबाद को एक्सेस कर पाए। इसके लिए मुझे सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों के बीच केबल डालना पड़ेगा। मैं भी एमपीएलएस लिंक हो सकता है, या फिर आप आईएसपी की लिंक ले सकते हो। जैसे आपने एयरटेल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया लिंक, एयरटेल से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया लिंक, इट इज पॉसिबल। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड नथिंग बट मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप यहाँ पे इंटरनेट नहीं चला रहे, यहाँ पे आईएसपी बीच में है, इन द सेंस आप इंटरनेट नहीं चला रहे, यू आर नॉट यूजिंग इंटरनेट, बट यू आर कनेक्टिंग अ डेडिकेटेड लिंक इन बिटवीन अहमदाबाद एंड वाराणसी लोकेशन। इसके और एक एग्जांपल लो, जैसे आपकी घर है, ये लेट से आपकी घर है, ठीक है, ये आपके घर है, ये आपकी क्या है, दूसरी एक सिटी में ना, आपकी जो टाटा स्काई वाले बैठे हुए हैं, जो टीवी की सर्विसेज देते हैं, उनकी ऑफिस यहाँ पे है। अभी उन्होंने क्या किया, एक केबल डाला है आपके घर तक, घर में एक अपने अपने एक एंटीना लगाया जिसे हम डिश टीवी कहते हैं, वहां तक इन्होंने एक केबल लगाया है। तो सिंपली दूसरी एक सिटी से मेरी सिटी तक या फिर मेरे घर तक कनेक्टिविटी है। दिस इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी से दूसरी सिटी का जो कनेक्शन होता है ना, उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ गए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जांपल कैसे आप बना सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा कोई बता रहा है कि मेरी एक सिटी में मेरी एक ऑफिस है, आरओ ऑफिस, रीजनल ऑफिस, दूसरी एक सिटी पे मेरी एक जेडो है, जनरल ऑफिस, इन दोनों के बीच में कनेक्शन करूंगा, मुझे किस टाइप की नेटवर्क में इसे बोलूंगा, तो आप सिंपल सी बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन है, इन द सेंस यू आर डूइंग मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप बना रहे हो। सेम बिल्डिंग के अंदर आपकी सब कुछ है, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग लैन लोकल एरिया नेटवर्क। गॉट इट रजत? Yes, got it. कोई डाउट रिलेटेड टू मैन? No. ओके, लेट्स मूविंग टूवर्ड्स वाइड एरिया नेटवर्क। देखो, डे टू डे जब आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर जाओगे, या फिर कहीं आप कंपनी में अभी भी काम कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा जो टर्म आपको सुनने में मिलेगा वो मिलेगा लैन, दूसरा मिलेगा वैन। बेसिकली मैन कहाँ फॉल करता है, जब आप आईएसपी में काम करोगे, जैसे आपकी कंपनी, लेट्स से आपकी जॉब लग गई एयरटेल में, या फिर आपकी जॉब लग गई एनटीटी में, आपकी जॉब लग गई टाटा में, तो बहुत सारे होते हैं आईएसपी कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। सो वहां पे ना आपको मेन टर्म सुनने को मिलेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वहां बनाते हैं वो लोग। हम लोग नहीं बनाते कंपनी में, नॉर्मल छोटे छोटे प्रोडक्शन कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी, बैंक्स में हम मैन नहीं बनाते। वो आईएसपी हमें बना के दे देता है, और आईएसपी कहता है मैंने वन बना दी है, लेकिन वो मैन ही बनाते हैं। अगर आप एमपीएलएस लिंक कनेक्ट कर रहे हो इन बिटवीन टू साइट्स, या फिर डेडिकेटेड लिंक कोई कनेक्ट कर रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, सो दिस इज काइंड ऑफ मैन। लेकिन वाईएसपी उसे क्या कहता है, वन कहता है, लेकिन वो वाईएसपी के एंड पे वो मैन ही रहता है, राइट। अगर मैं बात करूं वन की, सो वन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डब्ल्यू ए एन, वन। वन का मतलब, डब्ल्यू का मतलब होता है वाइड, ए का मतलब होता है एरिया, एन का मतलब होता है नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे इसकी नाम ही कह रहा है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था लैन, लोकल, मतलब ऐसा एक नेटवर्क जो लोकल ही हो, मेरे पास ही हो। यहाँ पे टर्म कर रहा हूँ वाइड, वाइड मतलब ऐसा एक नेटवर्क जो बहुत ही बड़ा हो, वाइड इन द सेंस बड़ा, बहुत ही बड़ा। सो दिस इज कॉल्ड वाइड। ऐसा टर्मिनोलॉजी ऐसे ही बना हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। वाइड मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, मेरी लैंड से तो बहुत बड़ा है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या कह रहा है, वन क्या कह रहा है, वन क्रॉस लार्ज जियोग्राफिक एरिया लाइक कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी। इस डेफिनेशन का मतलब यह है, वन क्या है, एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया है, मतलब बहुत ही बड़ा फिजिकल लोकेशन है, लाइक इन बिटवीन टू कंट्रीज। मेरे पास यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे मेरे पास इंडिया है, इन दोनों कंट्री को मैं कनेक्ट करूंगा आपस में, भाया वन कनेक्ट कर सकता हूँ, ओके। या फिर मेरे पास यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे मेरे पास लंदन है, इन तीनों को मैं कनेक्ट करूंगा, कौन सी टाइप की नेटवर्क आएगा, वो वन से आएगा। लेट्स से आप एज ए जेके पेपर में अभी काम कर रहे हो, जेका पेपर की लेट्स से हेड ऑफिस है मेरे पास कहाँ पे, यूके में है मेरी जेका पेपर की हेड ऑफिस कह सकते हो, फिर हेडक्वार्टर कह सकते हो। हेडक्वार्टर से आपकी जो ब्रांच रहेगी, अहमदाबाद हो या फिर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, वो दोनों कंपनी आपस में कनेक्टेड रहेंगे वाया वन वाइड एरिया नेटवर्क से, दोनों कनेक्टेड, ठीक है। और सिंपली और क्या कह रहा है, फॉर्मिंग बैकबोन ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट। जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, या फिर इंटरनेट है।
तो इंटरनेट की जो बैकबोन है वो कौन है? वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, समझ गए वाइड एरिया नेटवर्क? Yes. अभी देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज नेटवर्क। अब डे टू डे में ना पर्सनल एरिया नेटवर्क ही बनाते हो। जैसे मैं बात करूं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पी फॉर पर्सनल, ए फॉर एरिया, एंड फॉर नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क facilitates short range communication among personal devices such as smartphone and wearables। अगर मैं बात करूं, अभी आपने लैपटॉप या फिर मोबाइल से हमारी सेशन ज्वाइन कर रखा होगा। वही सेम लैपटॉप या मोबाइल से आपने अपनी ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा होगा जो कान में आपने लगाया है। वही सेम लैपटॉप या मोबाइल से आपने अपनी हेडफोन लगा रखा होगा, मे भी ब्लूटूथ भी लगा रखा होगा, हेडफोन भी लगा रखा होगा। सेम लैपटॉप या मोबाइल से आपने क्या कनेक्ट कर रखा होगा? अपनी स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर रखा होगा। यू कैन कनेक्ट विद इन ए सर्टन लिमिट। जिस डेस्क पे आप काम कर रहे हो बस वहीं पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? या फिर 100 मीटर, 200 मीटर, यहाँ तक आप कनेक्ट कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते आप कनेक्ट। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, लेस देन 10 मीटर आप कनेक्शन कर सकते हो, लेस देन 10 मीटर। जो पैन की जो रेंज रहती है ना वो लेस देन 10 मीटर रहती है, आउट ऑफ दैट आप कर नहीं सकते। बहुत बार आप देखे होगे, आप लैपटॉप से ब्लूटूथ कनेक्ट किए हो, थोड़ी सी दूर अपने स्पीकर को लेके जाओ, वहां पे वो डिस्कनेक्ट होगा या फिर बफरिंग करने लग जाएगा या फिर वहां पे साउंड ब्रेक होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज होती है। ठीक है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इन द सेंस मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो हम डे टू डे लाइफ में, जैसे मैंने अपने लैपटॉप के साथ कुछ कनेक्ट कर दिया, मोबाइल के साथ कुछ कुछ कनेक्ट कर दिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ और कोई यूज नहीं करता। जैसे मैंने ब्लूटूथ लगाया, मैं ब्लूटूथ यूज करूंगा, एट ए टाइम में 10 ब्लूटूथ कलर से लगा रहा हूँ, तो एक ही सिस्टम से वो कनेक्ट हो रहा है, तो मतलब पर्सनल है। ये जो नेटवर्क है विद इन यू है, आपसे ज्यादा कोई इसे यूज नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। गॉट इट? Okay, clear. अभी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहाँ पे ना बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल बाइफर्केशन हुई है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बता रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में जैसे यहाँ पे एक बंदा लैपटॉप ले रखा है, यूएसबी से कुछ कनेक्शन भी कर रखा है, अपनी स्पीकर भी लगा रखा है, ब्लूटूथ वायरलेस वाली माउस कनेक्ट कर रखा है, मोबाइल को कनेक्ट कर रखा है, अपनी वेयरेबल्स मीन्स स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर रखा है और हेडफोन कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे 3 पॉइंट भी हमने बताया। ये स्मॉल नेटवर्क बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, एक बहुत ही छोटा नेटवर्क जो एक पर्सन ही यूज कर पाएगा। इंडिविजुअल मतलब एक बंदा एट ए टाइम यूज कर पाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैन। कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस। आप अपनी लैपटॉप के साथ ना ब्लूटूथ हो या फिर वाईफाई से हो, एट ए टाइम एक नहीं, दो नहीं, मोर देन 1 and 2 डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे इस बंदे ने 5 डिवाइस कनेक्ट किए। यू कैन कनेक्ट 10 और मोर देन 10 डिवाइसेस। ओके, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। ओनली यूज इन वन बिल्डिंग। एक ही बिल्डिंग के अंदर या फिर एक ही रूम के अंदर आप इसे यूज यूटिलाइज कर पाओगे। गॉट इट? पैन के एग्जांपल आपको समझ आ गए? अगर आपको कहीं नेटवर्क देख रहे हो, तो अगर वो पैन कैटेगरी में फॉल होता है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। Yes, clear. ओके। और यहाँ पे जैसे इसकी रेंज मैंने आपको पहले ही बताया, पैन की रेंज होती है लेस देन 10 मीटर। 10 मीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकता। ठीक है? उसके बाद आती है लैन। लैन जो सबसे ज्यादा यूज होता है कंपनी के अंदर। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे यहाँ पे कंपनी है, कंपनी के अंदर 2 सर्वर है, एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, उससे सारे डिवाइस इसकी कनेक्ट है। इसकी एग्जांपल, सॉरी फॉर द नेटवर्क। यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल्स बता रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बता रहा है ना, यहाँ पे क्या बता रहा है? ये बिगर नेटवर्क देन पैन। पैन में हमें पता था क्या था? लेस देन 10 मीटर था, जो रेंज इसकी था लेस देन 10 मीटर था, विद इन ए बिल्डिंग, विद इन ए रूम था बेसिकली, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन ये जो लैन है ना, लैन पैन से थोड़ा बड़ा है। 10 मीटर से 1 किलोमीटर तक आप लेके जा सकते हो लैन नेटवर्क को। थोड़ा सा बड़ा है इन कंपेरिजन टू पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क को अगर आप कंपेयर करोगे तो लैन थोड़ा सा बड़ा है। अगेन कैन कवर लार्ज बिल्डिंग। थोड़ी सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है, या फिर आपके ऑफिसेस होते हैं, बैंक होते हैं, स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, आप वहाँ पे लैन बना सकते हो, वहां पे लैन कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपकी एक जैसे आप एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, अपनी स्टडी पूरी कर रहे हो, वहां पे कंप्यूटर लैब है। उस कंप्यूटर लैब में जैसे 30 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ऐसे लाइन में 30 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो आपने क्या किया, या फिर दूसरी एक उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर है, वहां पे आपकी एडमिन बैठते हैं, वहां पे 4-5 लैपटॉप लगे हुए हैं। और एक बिल्डिंग है, लेट्स से पांचवी मंजिल पे और एक बिल्डिंग है, वहां पे कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं। आपने क्या किया, हर एक फ्लोर में एक एक स्विच लगा दिया। ठीक है? और आपस में सारे स्विच को आपने कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैन। सो लैन हमेशा याद रखना, विद इन ये बिल्डिंग आप बना सकते हो, एक बिल्डिंग के अंदर आप बना सकते हो पूरी लैन की इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन
जो पॉइंट है वो 1 किलोमीटर के अंदर रहना चाहिए, 1 किलोमीटर से ज्यादा ये केबलिंग नहीं होनी चाहिए। 1 किलोमीटर से ज्यादा होगा देन यू कैन यूज एक्सटेंडर, वो आगे बात करेंगे। देन ऑफिस लोकल नेटवर्क प्रिंटर कनेक्शन फाइल सर्वर प्रिंटर एक्सेट्रा, नॉर्मली कहाँ पे यूज होता है, विद इन ए ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर इसे यूटिलाइज किया जाता है। देन थर्ड पॉइंट के फोर पॉइंट क्या कर रहा है, कैन नॉट बी यूज आउटसाइड द बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग के बाहर आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के अंदर एक नेटवर्क लगा होगा, वहां पे भी स्विच लगे होंगे, लगे हैं या नहीं लगे हुए हैं? हाँ लगा हुआ है। हाँ, वाईफाई भी लगे होंगे आपकी कंपनी में। हाँ वाईफाई भी लगा हुआ है। हाँ, तो उस वाईफाई की जो, लेट्स से आप कंपनी के अंदर आपके लैपटॉप लेके जाओगे, वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ही कंपनी से बाहर आओगे वो वाईफाई से ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके रेंज सेट है। ठीक है। दिस इज कह रहा है कैन नॉट यूज आउटसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के आउटसाइड है, पर कंपनी के आउटसाइड ये आप जो यूटिलाइज रेंज नहीं कर सकते। हाँ जी। ये जो रेंज होता है वाईफाई का, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या जो डिवाइस आता है उनका जो स्पेसिफिक ये रहता है कि जैसे मान लो जी कुछ एयरटेल हो गया कि कुछ भी कंपनी का एक उसका डिवाइस का टाइप करता है जो ये 100 मीटर रेंज देगा, या हमारा हिसाब से हम सेट कर सकते हैं इसको। देखो, जो वाईफाई पर्टिकुलर जो वाईफाई डिवाइस होती है ना, उसके अंदर आप उसकी कवरेज को डिसाइड कर सकते हो। अगर आप एडमिन हो, आपके पास राइट्स है, देन यू कैन सेट द कवरेज, कितने किलोमीटर तक जाएगा, कितने मीटर तक जाएगा, यू कैन सेट दैट। ओके। और ओके। कैसे करते हैं अगर थोड़ी सी बता दूं, उसके अंदर चैनल्स होते हैं। वाईफाई के अंदर ना बहुत सारे चैनल्स होते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल मोबाइल में हमें मिलती है 2.4 गीगाहर्ट्ज की चैनल मिलती है, 5 गीगाहर्ट्ज की चैनल मिलती है, ये दो चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एप्पल की ओएस की मोबाइल है, या फिर वन प्लस की मोबाइल है, वहां पे आपको 6 गीगाहर्ट्ज की भी चैनल देखने को मिल जाएगा। ये चैनल मतलब क्या होती है, बेसिकली स्पीड को ही डिटरमाइन करते हैं, स्पीड और रेंज को। पता है आपको 2.4 आपने देखा है कभी? देख सुना है इतना गीगा होता है। ठीक है। तो अभी कैसे देख सकते हो वो भी बता देता हूँ। आपके लैपटॉप के, आपके मोबाइल के अंदर ना, जो वहाँ पे आपकी वाईफाई की हॉटस्पॉट की आती है ऑप्शन, उसको क्लिक करके पकड़ना, फिर उसके नीचे जाना, पूरी जैसे कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएगा ना, वहाँ पे लिखा होगा आपकी जो वाईफाई, सॉरी, हॉटस्पॉट जो देना चाहते हो, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में देना चाहते हो या फिर 5 गीगाहर्ट्ज में देना चाहते हो। एंड यू नो द डिफरेंस ओके। बिटवीन 2.4 एंड 5? ज्यादा रेंज को वो हॉटस्पॉट देगा, रेंज बढ़ जाएगा। किसमें, 2.4 में या 5 में? 5 में। नहीं, गलत। देखो, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है ना, उसमें स्पीड स्लो रहता है, स्पीड, जो स्पीड फैक्टर है ना, स्पीड थोड़ी सी कम रहती है, सॉरी, स्पीड थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन कवरेज ज्यादा रहती है। लेकिन वही सेम ओके। 5 गीगाहर्ट्ज की अगर बात करो, स्पीड बढ़ जाता है, कवरेज कम हो जाता है। समझ गए? अच्छा। ओके ओके। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज। लाइक वाईफाई इज नॉट आवर टुडेस टॉपिक, वी कैन डिस्कस इट मोर एंड मोर इन हाँ फर्दर हाँ। टॉपिक। यस। बट क्लियर हो यस। गया ना, आपकी वाईफाई की जो होती है हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते। हाँ। Then you have clear all your question related to PAN and LAN. यस यस। Moving forward, we are discussing MAN, Metropolitan Area Network. जैसे यहाँ पे ये पिक्चर में बेसिकली डेमोनिस्ट्रेट कर रहा है, जैसे मेट्रोपॉलिटन, ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी एक बिल्डिंग है, ये तीसरी एक बिल्डिंग है, चौथी एक बिल्डिंग है, पांचवी एक बिल्डिंग है, और एक दूर खड़ा और एक बिल्डिंग है। ओके। और हर एक लोकेशन में अपनी अपनी लान देखो बना हुआ है, ये अपना लान बना हुआ है इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में अपनी ये लान बना हुआ है, इस दोनों बिल्डिंग में अपनी लान बना हुआ है। सो अपनी अपनी लान बने हुए हैं। ये सारे लान को अगर मैं कनेक्ट करूंगा दूसरी एक, लेट्स से ये मेरी एचओ है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के साथ ये ब्रांच लोकेशन को लेट्स से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ गए? यस। कोई डाउट है इन तीनों टाइप नेटवर्क, पैन लैन एंड वन मैन में? ये जो केबल को कनेक्ट कर दीजिए, मान लीजिए मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है, मैं मुंबई में बैठा हूँ मेरा ब्रांच, तो जो वहां से वहां तक कनेक्शन वो कौन देता है, वो कौन सा केबल से आता है, तो वो बाद में बता देता डिस्कशन करेंगे या नहीं, अभी बता देता हूँ। जैसे ये आपकी दिल्ली लोकेशन है, राइट? आपकी दूसरे, आपने कहा मुंबई में है, आपकी दो ब्रांच है, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है। ठीक है।
अभी ऐसा तो नहीं कि आप ही केबल डालने लग जाओगे एज ए नेटवर्क इंजीनियर, या फिर आपने किसी को पैसा दे दिया, आपने अपने से केबल डाल दिया, आप नहीं कर सकते। दिस इज लॉन्ग रूट, और आपको आप कर ही नहीं सकते। वो कहाँ से केबल जाएगा, कैसे जाएगा, आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए नॉर्मली क्या हम करते हैं, दिल्ली में बहुत सारे आईएसपी होंगे, लाइक दिल्ली में एयरटेल होगा, जियो होगा, बीएसएनएल होगा, बहुत सारे आईएसपी होंगे, राइट। यस। दिल्ली वालों ने क्या किया, आईएसपी के लेट से एयरटेल आईएसपी से कनेक्शन ले लिया। सेम मुंबई में लेट से एयरटेल नहीं है, मुंबई में मेरे पास यहाँ पे जियो है, तो मुंबई वालों ने जियो से कनेक्शन ले लिया। और इन दोनों ने बाय डिफॉल्ट हमें पता है सारे आईएसपी आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों कनेक्टेड है ही, तो मेरी सर्किट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ये मान लीजिए ये बाय द वायर या बाय द ये बाय द एयर। दोनों टाइप। आपके जब आईएसपी को जाके आप अप्रोच करोगे ना कि मेरे मुझे कंपनी में एक लिंक चाहिए, तो आईएसपी आपको दो चीजें बताएगा, आपको आरएफ में लेना है, आरएफ होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी में लेना है, जहाँ पे टावर लगा के बुक करते हैं, इस पे लेना है, या यस। फिर आपको ऑप्टिकल फाइबर डालनी है। दो ऑप्शन आपको देगा आईएसपी। अगेन इट्स ओपन टू यू, आप कौन सी लेते हो, आरएफ लेते हो या फिर ऑप्टिकल फाइबर लेते हो। जो एयरटेल वाला वो जियो वाला का कनेक्शन होता है ना, तो उसी आईएसपी के तो बहुत सारे कंपनी यूज करते होंगे, तो उसके बिल्कुल। रेंज हमारा वो स्पीड घट नहीं जाएगा वो, या इस एक ही लिंक पे तो बहुत सारा ट्रैफिक जाता होगा। देखो, ये जो एयरटेल और जियो के बीच में जो केबल डला हुआ है ना, ये ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, आपको ये डालने के इसकी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। ये बस एयरटेल से आपकी कंपनी तक जो केबल आएगा, इसका पैसा आपको देना पड़ेगा। जियो से मुंबई तक जो केबल आएगा, इसका आपको पैसा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। आप कैसे ट्रांसमिट करोगे, आरएफ में ट्रांसमिट करोगे, ऑप्टिकल फाइबर में करोगे। लेट्स से आपने चूज किया मैं ऑप्टिकल फाइबर से मेरी कनेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिर से एक ऑप्शन आएगा, एमपीएलएस लिंक चुनोगे या फिर पॉइंट टू पॉइंट लिंक चुनोगे। एमपीएलएस लिंक यहाँ पर अगर आपने चूज किया, तो जो लिंक आपको मिलेगा ना, ये सिर्फ आपके लिए होगा, कोई और यूटिलाइज कर ही नहीं सकता इसको। एमपीएलएस होती है मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। जो भी डाटा यहाँ से जाएगा, यहाँ से इनक्रिप्ट होके जाएगा और आपकी मुंबई तक इनक्रिप्ट होके ही पहुंचेगा जाके। और इस लिंक को बेसिकली एक लॉजिकल सर्किट बनाता है आईएसपी, जिसके ऊपर और कोई किसी की ट्रैफिक जा ही नहीं सकता। और एमपीएलएस इसलिए कहा जाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ओके। समझ गए। लेकिन ओके। सेम केस में अगर पॉइंट टू पॉइंट आपने लिया, तो पॉइंट टू पॉइंट में आईएसपी कुछ नहीं करेगा, यहाँ से केबल सीधा यहाँ तक डाल देगा, और इस केबल को मेंटेन आईएसपी करेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके। गॉट इट। क्लियर हुआ नहीं यस। हुआ। हो गया। और थोड़ा थोड़ा बाकी है, वो आगे देखेंगे। नहीं, बताओ कहाँ पे थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ। तो सिंगल लिंक जो होगा तो मुंबई में बहुत सारे कंपनी होगा, दिल्ली आपकी आवाज ब्रेक हो उसमें रही है। जैसे कनेक्ट होंगे वो इतना 1000 कंपनी, मान लीजिए 1000 मतलब 1000 कंपनी का कौन वायर डाला होगा, वायर होगा, या एक ही तो, या स्पेसिफिक 200 लिंक में वो आपस में वो कॉम्प्रोमाइज आप कौन करके सी लिंक की बात कर रहे हो, इस वाले लिंक की बात कर रहे हो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जो इस वाली, आईएसपी जो भीड़, हाँ हाँ हाँ। ये जो आईएसपी टू आईएसपी कनेक्शन है। हाँ हाँ। देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कुछ चीजें। ये जो दिल्ली वाली लिंक है ना, ये तो आपके पास फिजिकल केबल आएगा आपके पास, जो आप भी हाँ, देख पाओगे, वो तीन ये दो। तो हाँ पीयर टू हाँ, पीयर होगा, ये तो ये आपका पॉइंट टू खुद पॉइंट के ही आएगा। होगा वो। अभी हाँ आईएसपी के ठीक। बीच ना एक केबल नहीं, मल्टीपल केबल होते हैं आईएसपी के बीच, एक कट गया तो दूसरे से ट्रैफिक जाएगा, रिडंडेंसी बेसिकली होती है। ओके, सो अभी ये जो एक ओके। लिंक है, ये एक लिंक एयरटेल से जियो में भी गया होगा, और एक दूसरी लिंक एयरटेल से लेट से टाटा में गया होगा, और एक लिंक लेट से एयरसेल से वोडाफोन में गया होगा। सारे आईएसपी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लेट से फिर टाटा से, ये आपके टाटा वाली आईएसपी है, टाटा से फिर जियो से भी एक कनेक्शन गया होगा, जियो से फिर बीएसएनएल को भी कनेक्शन गया होगा। काइंड ऑफ मैश टोपोलॉजी ये लोग बनाते हैं अपने बीच में। यस आपकी लेट से यस ये यस। वाली केबल आपकी कट हो गया, तो दूसरी वे से वो ट्रैफिक भेजेगा। अच्छा, ठीक है, वो इंटरनेट प्रोवाइड वो आईएसपी वो खुद देख लेगा, आईएसपी और लेकिन आपको आईएसपी के कनेक्शन बीच करके कभी देगा। केबल कनेक्ट, आईएसपी और आईएसपी के बीच कभी केबल डाउन नहीं जाएगा। एक पाथ बंद हो गया, कोई बात नहीं, दूसरी पाथ से जाएगा ट्रैफिक। और इन दोनों के बीच कोई कंपनी वंपनी नहीं रहते, इन दोनों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। अच्छा। ठीक है। ओके। ठीक है। क्लियर। हाँ क्लियर। ओके, आगे चलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सॉरी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमने कवर कर दिया। इसकी जो रेंज रहती है लेस देन 10 किलोमीटर रहती है, विच इज लार्जर देन लैंड।
उसके बाद हमारे पर क्या आता है, वन वाइड एरिया नेटवर्क, जो ग्लोबल नेटवर्क जिसे हमें इंटरनेट भी कहते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, देखो पूरी ग्लोब सी बनी हुई है, पूरी यहाँ पे कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, एक दुकान है, ये दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सब इससे कनेक्टेड है। ठीक है। सो बेसिकली जो मेरे पास छोटे छोटे लैन थे, मेरे पास लैन वन है, दूसरी एक किसी का लैन टू है, लेट्स से जेके पेपर की उसकी लैन है, होंडा की उसका लैन है, टाटा मोटर्स की उसकी लैन है। ये सारे लैन को मैंने कनेक्ट करके क्या बनाया था, ये सारे लैन को कनेक्ट करके मैंने क्या बनाया था, नेटवर्क। नहीं, इन सारे लैन को कनेक्ट करके मैंने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया था। हाँ एक एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट कर दिया ना, तो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क आपका हो गया। हाँ हाँ, मेट्रो, तो हाँ। तो ऐसे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेरे पास होंगे, राइट। यस। ये सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को जब कनेक्ट करूंगा, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट और वाइड एरिया नेटवर्क। पहले लैन आया, यस। लैन को जैसे मैंने मल्टीपल लैन को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया, तो दिस इज बिकम मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया वो आपका। वन। और मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मैंने कंबाइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। गॉट इट। गॉट इट। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये ना बेसिक थोड़ी है, इस बेसिक के ऊपर ही आपकी पूरी आगे चलेगी सेशन। नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना। चलो, आगे क्वेश्चन भी इसी से आएंगे, फिर पता चल जाएगा क्लियर है या नहीं। फिर कंप्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अगर कंप्यूटर की बात करूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लाइक बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन सर्विस एंड कंट्रोलर। बेस्ड ऑन ओनरशिप में दो टाइप की नेटवर्क आती है, प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क जो आपकी कंपनी के अंदर है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क जो आपकी आईएसपी की नेटवर्क है, लाइक एयरटेल जियो, उनकी नेटवर्क को हम पब्लिक कहते हैं, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। गॉट इट, ये दोनों क्लियर हो गया आपको। यस। उसकी बात आती है बेस्ड ऑन सर्विस एंड कंट्रोल। वन इज पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर बेसिकली क्या होता है, लेट्स से ये आपकी एक सिस्टम है, ये आपकी एक सिस्टम है, दोनों आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है। इन बिटवीन सिस्टम वन एंड इन बिटवीन सिस्टम टू देयर इज नो इंटरमीडिएट डिवाइस। इन दोनों डिवाइस के बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है। दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर डिवाइस। समझ गया। समझ गया। हाँ। सेम दूसरी तरीके की हमारी क्या आती है, क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, बेसिकली मेरे पास एक सर्वर है, मल्टीपल क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड सर्वर क्लाइंट मॉडल। ठीक है। तीसरी आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड में बेसिकली लेट्स से एक सर्वर यहाँ पे, दूसरी एक सर्वर होगा, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट। और ये वाले सर्वर क्लाइंट से कैसे कनेक्टेड है, सर्वर क्लाइंट। समझ गए, कॉम्बिनेशन ऑफ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। नहीं, गॉट फिर इट। से बताया। देखो, पीयर टू पीयर क्या होता है, ये आपकी एक सर्वर है, जैसे ये दूसरा एक सर्वर है, दोनों के बीच मैंने केबल लगा दी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, सर्वर कम्युनिकेशन। सर्वर हो सकता है या कंप्यूटर भी हो सकता है, दैट कुछ इज भी हो कॉल्ड पीयर सकता है, टू पीयर। कुछ भी हो सकता है, हाँ, यस, यस। कुछ भी हो सकता है, दोनों के बीच आपने केबल डाल दिया, दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। इन दोनों डिवाइस के बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई थर्ड डिवाइस यहाँ पे नहीं है, दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। यस। गॉट इट। यस। और ये जो लेट्स से ये कब सिस्टम है ना, ये सिस्टम और एक सर्वर से कनेक्टेड है, ये से इस सर्वर से बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है। सो यहाँ से यहाँ तक कौन सी मॉडल बना रहा है, क्लाइंट क्लाइंट सर्वर टू मॉडल। सर्वर। और यहाँ से यहाँ कौन यस। सी आर्किटेक्चर बना रहा है, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर। समझ गए, बिल्कुल क्लियर, पीयर टू पीयर यस, एंड यस। क्लाइंट सर्वर मॉडल। यस। नॉर्मल जो कंपनी के अंदर यूज होता है ना, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज होता है। कैसे पता चलेगा आपको, लेट्स से आपने सुना होगा, मैं अपनी लैपटॉप को डोमेन में यूज, मेरी मेरी जो कंपनी की लैपटॉप है, दो डोमेन वाली लैपटॉप है, राइट। आपने भी यस। डोमेन शायद आप ज्वाइन भी कर रहे होगे डे टू डे में लैपटॉप्स को। यस। तो यस। डोमेन क्या यस। होती है, एक सर्वर होती है। आपने आपकी कंपनी की लैपटॉप को डोमेन से कनेक्ट कर दिया, सो मतलब दिस इज ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। सर्वर जो बोलेगा क्लाइंट वही करेगा। यस। यस। दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। लेकिन अगर आपके यस। पास पीयर टू पीयर है, देन यू कैन मॉडिफाई ईच एंड एवरीथिंग। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन क्लाइंट सर्वर में सर्वर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, सर्वर डाउन हो गया, देन कंप्यूटर भी बंद ही हो जाएगा। क्लियर। यस। हाइब्रिड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। जैसे मैंने आपको बताया ना, दोनों एक सिस्टम से, क्लाइंट सर्वर से भी कम्युनिकेट कर रहा है, पीयर टू पीयर भी कम्युनिकेशन हो रहा तो एक कंपनी में मल्टीपल सर्वर होगा, तो एक क्लाइंट होगा, तो वो हाइब्रिड हो जाएगा ना।
यस, लाइक कंपनी में बेसिकली हाइब्रिड टोपोलॉजी कहाँ पे यूज होता है, वो डीसी के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर यूज होता है। डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे सर्वर होते हैं, सारे सर्वर आपस में कैसे रहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में रहते हैं। एक सर्वर में अगर लेट से ये आपकी एडी सर्वर है, ये भी आपकी एडी सर्वर है, ये भी आपकी एडी सर्वर है, सारे पॉइंट टू पॉइंट में कनेक्ट है। ये एक एडी सर्वर लेट से ड्यू टू सम पावर इशू और सम इशू एक एडी सर्वर बंद हो गया, दूसरी एडी सर्वर से आपकी ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगा, दूसरा बंद हो गया, तीसरे से ट्रैफिक जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड योर पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन एडी सर्वर से मेरी क्लाइंट कैसे कनेक्टेड है, क्लाइंट मेरी क्लाइंट सर्वर मॉडल से कनेक्टेड है। ओके। गॉट इट? बिल्कुल क्लियर है तीनों मॉडल कैसे होती है, और ये दो टोपोलो ये बेसिकली ओनरशिप के बेस में कैसे होते हैं। यस। कोई डाउट नहीं है इसमें। नहीं। उसके बाद आती है बेस ऑन जियोग्राफिकल एरिया। अगेन जैसे मैंने बताया, जियोग्राफिकल का मतलब होता है फिजिकल एरिया। ओके, फिजिकल एरिया का मतलब होता है जियोग्राफिकल एरिया। जैसे हमने डिस्कस भी किया, पैन होता है, लैन होता है, वन होता है, मैन होता है। ये चार टाइप की नेटवर्क, मोस्टली ये चार टाइप की नेटवर्क होती है जो जियोग्राफिकल लोकेशन के वाइज डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर। कोई डाउट इनमें? नहीं। आगे चलते हैं। आगे आती है मेरे पास लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमने तो जस्ट पढ़ा लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कितनी रेंज रहती है। लोकल एरिया नेटवर्क की वैसे रेंज कितनी रहती है? 1 किलोमीटर। लैन की मेरी लेस देन रहती है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। ओके, गुड। और मैन की कितनी रहती है? 10 किलोमीटर। लेस देन 10 किलोमीटर। गुड। देन यहाँ पे आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लैन। लैन की ओवरव्यू हम देखेंगे। ये बेसिकली होती है आपकी कौन सी केबल, व्हिच काइंड ऑफ केबल दिस इज? RJ45। दिस इज योर लैन केबल। ओके, यस, लैन केबल। आप इसको RJ45 भी बोल सकते हो, यू आर गुड। बट RJ45 एक कनेक्टर होता है, दिस इज नॉट द यस यस। RJ45 केबल। केबल RJ45 नहीं होता, ये जो कनेक्टर लगा हो ना यहाँ से, कनेक्टर, हाँ। दिस इज RJ45 कनेक्टर। लेकिन केबल कौन सी होती है, केबल इज योर लैन केबल। लैन गॉट इट? केबल। दिस इज योर लैन केबल। गॉट इट। आगे से ध्यान रखना, किसी को भी कुछ बोल रहे हो, दिस इज नॉट योर लैन, दिस इज नॉट योर RJ45 केबल, दिस इज योर लैन केबल। और बहुत लैन सारे केबल। इंजीनियर यस इसको ये भी बोलते हैं, लैन पैच कोड। यस। इसे लैन पैच कोड भी बोला जाता है। गॉट इट? गॉट इट। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि लैन ओवरव्यू एंड कवरेज। लैन की ओवरव्यू कैसी है एंड कवरेज कैसी है। लैन कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइस विद इन अ लिमिटेड एरिया लाइक होम, ऑफिसेज, कैंपस, एनेबलिंग एफिशिएंट कम्युनिकेशन। हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। अगर मैं लैन बना रहा हूँ, कहाँ कहाँ बना सकता हूँ? घर के अंदर मैं अपनी लैन बना सकता हूँ, ऑफिसेस में बना सकता हूँ, कैंपस में बना सकता हूँ। क्यों बनाऊंगा? एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए। लेट से आपके पास आपकी जो कंपनी है वो एक 2 फ्लोर वाली मंजिल है, 2 फ्लोर वाली कंपनी है आपकी, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। लेट्स से सेकंड फ्लोर में आपकी प्रिंटर लगा हुआ है, और आप बैठे हुए हो कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर में। सो या फिर आप ऐसे कर सकते हो, वाईफाई आपकी लगी है ग्राउंड फ्लोर में, आप बैठे हुए हो सेकंड फ्लोर में। सो नॉर्मली हमें नॉर्मल वे में हमें क्या करना पड़ता था, अगर मुझे इंटरनेट चलानी है या फिर कुछ सर्विस एक्सेस करनी है, प्रिंटर लेनी है, मुझे जहाँ पे सर्विस है वहां पे मुझे जाना पड़ता था। लेट्स से यहाँ पे सेकंड फ्लोर में आपकी प्रिंटर लगा हुआ है, आप ग्राउंड फ्लोर में बैठे हुए हो, आपके पास नेटवर्क नहीं है, आप क्या करोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे या फिर लिफ्ट से जाओगे सेकंड फ्लोर, वहां से प्रिंट निकालोगे फिर आओगे। लेकिन अभी नेटवर्क है आपके पास, आपने क्या किया, यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, और सारे कंप्यूटर आपकी फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के कंप्यूटर इस स्विच से कनेक्टेड है। एक स्विच हो सकता है, फिर फ्लोर वाइज 3 स्विच हो सकते हैं। सो आपने ग्राउंड फ्लोर में बैठे बैठे प्रिंट दे दी, प्रिंट सेकंड फ्लोर में निकल गया। राइट, ऐसे आप कर सकते हो नेटवर्क से। सो लोकल एरिया नेटवर्क इज एफिशिएंटली यूज फॉर ऑफिस, होम एंड कैंपस कम्युनिकेशन। आप सोचोगे कि मेरे पास एक सिटी है, लेट्स से भोपाल मेरे पास एक सिटी है, दूसरी मेरे पास लखनऊ एक सिटी है, दोनों के बीच में लोकल एरिया नेटवर्क बनाऊंगा, आप बना नहीं सकते। भोपाल के अंदर आप लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हो, उसकी ऑफिस के अंदर, लखनऊ में जो ऑफिस है उसके अंदर आप लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हो। लेकिन दोनों को अगर आप कनेक्ट करोगे, देन दिस इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। गॉट इट? It is possible to, so like that I am
just connectivity ping to my reach out the Delhi office to Mumbai office. So it is possible to print out to Delhi office to Mumbai office. It is possible. Okay, got it. Let me just Yes, clarify what you actually say. Let's say आप कह रहे हो आप दिल्ली में बैठे हो, you are sitting in Delhi, your second location is let's say, sorry, just give me a second. दिल्ली में Okay, रह as you के say, you are मोबाइल sitting in Delhi, मोबाइल your हाँ second okay, what is actually happening? Okay, as you say, you are sitting in Delhi. Let me change the color. You are sitting in Delhi, your second office in Mumbai, and Mumbai you have two printers. Okay, and you are sitting in Delhi location, and you are connecting via metropolitan area network, or you can say you are connecting two offices, Mumbai and Delhi location. You have reachability. So you are doing, or you are set command from print from Delhi location. Is your printer accessible from Mumbai location? Is it your question? आप मुंबई से प्रिंट दोगे, यस मुंबई से यस प्रिंट आउट निकलेगा या नहीं, हाँ यही पूछ रहे हो ना आप? यस, निकल सकता हाँ है आपका मुंबई से प्रिंटर। देंगे दिल्ली हाँ वही बिल्कुल वही बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन आपके प्रिंटर हाँ जो है वो नेटवर्क प्रिंटर होना चाहिए। यस यस नेटवर्क ओके, प्रिंटर की बात कर रहा यस, हूँ समझ गए ये ऊपर वाली लाइन का मतलब क्या है? हाँ हाँ उसके बाद आती है हाई स्पीड एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। देखो, कोई भी नेटवर्क की क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई पूछ रहा है कौन से नेटवर्क सबसे ज्यादा स्पीड देता है, सो आंख बंद करके आप ये आंसर दे सकते हो, दिस इज योर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। बिकॉज लोकल एरिया नेटवर्क इज द हाई स्पीड। सबसे ज्यादा जो स्पीड रहती है ना, वो लोकल एरिया नेटवर्क का ही रहता है। ओके, देन यहाँ पे जैसे उसने बताया, लैन प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम 100 एमबी टू सेवरल जीबीपीएस। देखो, लैन की जो स्पीड रहती है ना, वो 100 एमबीपीएस से शुरू होता है। ये शुरुआती स्पीड है, 100 एमबीपीएस। इट कैन गो बियॉन्ड योर लिमिट। आप कितना, आपके डिवाइस की कैपेबिलिटीज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्टार्टिंग की जो लिमिट है, जैसे 100 एमबीपीएस। जैसे मैं मेरे पास एक गाड़ी है, मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो पर आवर 30 किलोमीटर है। उसी गाड़ी के अंदर अगर मैंने इंजन और थोड़ी रॉयल एनफील्ड वाले इंजन लगा दी, वो 1 मिनट में भी हो सकता है 200 किलोमीटर जा रहा है। तो लाइक दैट, मेरे पास एक राउटर है, उस राउटर की स्पीड है 1 एमबीपीएस की, तो लैन में वो 1 एमबीपीएस ही देगा। लेट्स से और एक राउटर है मेरे पास, उसकी स्पीड है 10 जीबीपीएस। सो आपके LAN की स्पीड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो आपकी जो स्पीड है LAN की, वो शुरू होती है 100 एमबीपीएस से, लेकिन जा बहुत दूर तक जा सकता है, 100 एमबीपीएस, 100 जीबीपीएस, 2000 जीबीपीएस। इट्स डिपेंड्स अपॉन योर नेटवर्क डिवाइस। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस गॉट इट यस। उसके बाद क्या कहता है, रिसोर्स शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। जो लैन होता है, आपने वो सुना भी होगा, लैन इज द मोस्ट सिक्योर नेटवर्क। जो नेटवर्क होती है ना, सब में, उस सब सारे नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क इज द मोस्ट सिक्योर। Okay, LAN enables sharing of printer files application while offering enhanced security and control environment. LAN के अंदर आपने रिसोर्सेस हमने जैसे बात पहले पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, आईटी रिसोर्सेस। आईटी रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? नेटवर्क डिवाइसेस आईटी डिवाइसेस जो कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क में Right. Like your printer, scanner, your thermal scanner, there are multiple things. Okay. These all things are your IT equipments. You can share your IT equipments resources, like आप अपने नेटवर्क के अंदर, आपके पास जैसे नेटवर्क प्रिंटर है, आप शेयर कर सकते हो नेटवर्क के अंदर। ओके। ऑल्सो कॉस्ट सेविंग। आप मुझे बता सकते हो लैन को कॉस्ट सेविंग में क्यों बता रहा हूँ? वाई लैन इज कॉस्ट सेविंग? locally connected to each other so that no difference between one team more than one printer so each ओके, is every connected to 50 meters under so that's why it is a cost effective okay, it is a good point, but the actual cost affecting solution is like, let's say आपके पास तीन डिपार्टमेंट है। लेट्स से आपके पास एचआर डिपार्टमेंट है। लेट मी डू वन थिंग। ओके, आपके पास लेट्स से यहाँ पे एक एचआर डिपार्टमेंट है। लेट मी चूज माय। लेट्स से ये आपकी एचआर डिपार्टमेंट है। ओके, ये आपकी दूसरी डिपार्टमेंट है सेल्स,
ये आपकी तीसरी डिपार्टमेंट है, लेट्स से आईटी। अभी तीनों डिपार्टमेंट में ना एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? वो प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पहले ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम ये थी, ये तीनों डिपार्टमेंट में ना अभी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें प्रिंटर चाहिए। ठीक है। सो नॉर्मली अगर मेरे पास नेटवर्क नहीं है तो यहाँ के लिए मैं प्रिंटर खरीदूंगा, यहाँ के लिए प्रिंटर खरीदूंगा, यहाँ के लिए प्रिंटर खरीदूंगा, राइट। तीनों डिपार्टमेंट की अपने अपने प्रिंटर रहेगी, क्योंकि लोकेशन ये फर्स्ट फ्लोर में लेट्स से है, ये सेकंड फ्लोर में है, ये ग्राउंड फ्लोर में है, राइट। हम तीन प्रिंटर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हाँ ठीक है, हाँ। 3 कर लेंगे। तीन प्रिंटर खरीदने के लिए इंडस्ट्री में तीन प्रिंटर नॉर्मली आप तीन प्रिंटर खरीदने जाओगे कंपनी में। तो तीन प्रिंटर खरीदने में मेरे पास एक प्रिंटर की जो कॉस्ट आ रही है वो लेट से 3 लाख की आती है। तो 3 लाख इंटू तीन प्रिंटर, मतलब मेरे पास कॉस्ट आती है 9 लाख की। ओके। सो व्हिच इज हायर। अभी इस इंस्टेड ऑफ बाइंग थ्री प्रिंटर मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक स्विच खरीदूंगा। ये सारे जो जितने एक ही प्रिंटर खरीदूंगा, एक ही स्विच खरीदूंगा। लेट्स से प्रिंटर की मेरी रेट आ गई 3 लाख, और स्विच की मेरी जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 1 लाख, मेरी 4 लाख की कॉस्टिंग हो गई। अब इस प्रिंटर को मैं क्या करूंगा, नेटवर्क से कनेक्ट कर दूंगा। लेट्स से प्रिंटर मैंने यहाँ लगा दी, नेटवर्क से कनेक्ट कर दूंगा, और सारे जितने भी यूजर है ना उन सबको भी स्विच से कनेक्ट कर दूंगा मैं। अभी कोई भी किसी भी लोकेशन से किसी भी डिपार्टमेंट हो, वो प्रिंट दे दे, प्रिंट निकाल ले अपनी। सो दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन इन कंपनीज। कंपनी में ऐसे होता है, क्या करते हैं वो, इंस्टेड ऑफ बाइंग डिपार्टमेंट वाइज प्रिंटर, दे आर बाइंग ए सिंगल प्रिंटर एंड कनेक्टेड इन नेटवर्क। एक मैंने प्रिंटर की एग्जांपल ली, आप स्कैनर की भी ले सकते हो, सर्वर की भी ले सकते हो। यू कैन टेक मल्टीपल डिवाइसेस हु कैन शेयर देयर रिसोर्सेज। गॉट इट? गॉट इट। Yeah, that's why we are saying LAN is cost effective solution. ओके। आगे हमारे पास क्या पॉइंट आते हैं, स्केलेबिलिटी एंड एप्लीकेशंस। ओके, स्केलेबिलिटी इन द सेंस, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? गुड कम्युनिकेशन, नहीं, स्केलेबिलिटी। नहीं। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ स्केलेबिलिटी के मतलब क्या है। लेट से आपने घर आपकी एक लेट से ये आपकी घर है, लेट से ये आपकी जमीन है। इस जमीन में आपने घर बना दी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने घर बना दी। ये पूरी ना, ये जितने भी मैंने अभी ड्रॉ किया, ये पूरी एरिया आपने घर बना दी, और टोटल एरिया आपकी यहाँ से यहाँ तक थी बस। ओके। तो फ्यूचर में मुझे और एक घर मेरे घर के बाजू में ही बनाना है, क्या मेरे पास यहाँ पे जगह है, यहाँ पे मैं बना सकता हूँ? ऊपर बना सकते हैं। ऊपर तो बना सकते हो, साइड में थोड़ी बना सकते हो। साइड में नहीं, नहीं कर सकते। नहीं बना सकते है ना। लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आपकी कैसे रहेगी, लेट्स से आपके पास एक प्रिंटर था, लेट्स से आपके पास एक स्विच था। इस स्विच में मेरे पास यहाँ पे क्या था, 24 पोर्ट ही थे। स्विच मेरी कितनी पोर्ट की थी, 24 पोर्ट की थी। अभी 24 पोर्ट में से मैंने 24 पोर्ट यूटिलाइज कर दी, 24 सिस्टम मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी लेट्स से 25 नंबर वाली एक सिस्टम है, उसे इस स्विच में मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? नहीं, और एक स्विच खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट स्केलेबल। आपकी जो स्विच है वो स्केलेबल नहीं है। ठीक है। तो स्केलेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास एक स्विच है, ठीक है। इस स्विच में मेरे पास लेट से 24 पोर्ट है, 24 के 24 पोर्ट मैंने कनेक्ट कर दिया। लेट से 25 नंबर वाली मेरे पास सिस्टम आती है। इस स्विच के पीछे केबल होगा जिसको हम कहते हैं स्टार्ट पोर्ट, और एक दूसरी एक स्विच खरीदूंगा। इस स्विच के साथ उस स्विच को मैं कनेक्ट कर दूंगा। अभी इस दोनों स्विच के पास 24 + 24 48 पोर्ट हो गए। समझ गए? लेकिन आप यस। बोलोगे मैं इसको इसके ऊपर ही क्यों लगाऊंगा स्टार पोर्ट से, मैं तो दूसरा उसे लगा सकता हूँ। देखो, दूसरा लगाओगे तो हर एक स्विच में ना कुछ अपलिंक्स रहते हैं। इसके लेट से इस स्विच में 4 अपलिंक्स है, इस स्विच में भी 4 अपलिंक्स हो गए। तो यहाँ पे 4 अपलिंक मेरी, अगर नॉर्मल इसे मैं अलग लगाऊंगा तो 4 अपलिंक यहाँ पे भी मेरी यूटिलाइज होंगे। लेकिन अगर इसी स्विच के साथ मैं लगाऊंगा ना, इसकी कोई भी एक सिंगल अपलिंक यूटिलाइज नहीं होंगे, तो 4 पोर्ट मुझे यहाँ पे फ्री में मिल गए। सो लाइक दैट, अगर लैन की मैं बात करूं, लैन की अगर मैं बात करूं, जिसे हम कहते हैं क्या, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब आपकी जो लैन की नेटवर्क है ना, वो फ्यूचर में भी आप उसे बढ़ा सकते हो।
आपके पास स्विच था, स्विच में आपने एक प्रिंटर लगाया था, 2 हफ्ते बाद आपके दूसरे डिपार्टमेंट वालों ने अपनी एक प्योर एज किया, अपनी एक प्रिंटर खरीदी, आपने उससे भी नेटवर्क में लगा सकते हो। दैट्स मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क व्हिच इज फ्यूचर प्रूफ। आप फ्यूचर में भी उसे आगे लेके जा सकते हो इस टाइप की नेटवर्क को। लेकिन आपने स्विच ही खरीदा जिसके अंदर 2 ही पोर्ट है, आपने 2 प्रिंटर लगा दी, काम खत्म। दूसरा कुछ आएगा तो उसके लिए और एक स्विच आपको खरीदना पड़ेगा। दिस इज नॉट फ्यूचर प्रूफ। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है फ्यूचर प्रूफ। आप जो चीज बना रहे हो या फिर क्रिएट कर रहे हो, वो फ्यूचर विजन के साथ बना रहे हो आप। मतलब फ्यूचर में मेरे पास एक सर्वर था, ठीक है, फ्यूचर में लेट्स से मेरे पास एक सर्वर था, मैंने लेकिन एक स्विच खरीदा जिसके अंदर 48 पोर्ट है, ठीक है। अभी एक पोर्ट, इस पोर्ट पूरी स्विच में 48 पोर्ट में से मैं सिर्फ सिंगल पोर्ट यूज कर रहा हूँ, 47 पोर्ट फ्री चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में मेरी यूज हो सकते हैं। मेरी जो यहाँ पे सोल्यूशन है वो फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर में मेरे पास लेट्स से 10 यूजर आते हैं, मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, चल जाएंगे वो। सो दिस इज नथिंग बट योर स्केलेबिलिटी। आपकी जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसे आप फ्यूचर में नेटवर्क को एक्सपांड कर सकते हो। लेट्स से आपके पास जेके पेपर है, जेके पेपर इज नथिंग बट इज ए प्रोडक्शन कंपनी, वहां पे मैं भी सम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन जहाँ पे प्रोडक्शन मशीन लगे होंगे। सो आपकी एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पे प्रोडक्शन मशीन लगे हुए हैं सारे, ओके। तो देखना जेके पेपर की यहाँ पे कुछ फ्री स्पेसेस भी होंगे, जिसके अंदर वो फ्यूचर में अगर दूसरी एक लाइन आ गई है तो वहां पे वो लाइन को बना सकते हैं। दिस इज नथिंग बट फ्यूचर प्लान। समझ गए फ्यूचर प्लान या फिर स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यस। सो यहाँ पे वही सेम चीज लिखा है, लैन आर स्केलेबल टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड कॉमनली यूज इन ऑफिस स्कूल कोलैबोरेशन वर्क। ग्रोथ मतलब लेट से आज आपकी कंपनी में 2 सर्वर है, एक स्विच से कनेक्टेड है। आपने ऐसी एक स्विच खरीदा होगा जिसके अंदर फ्यूचर में अगर लेट से और 4 सर्वर आते हैं, वो इसी स्विच से कनेक्ट हो जाए। ऐसे नहीं कि मेरे पास एक ही हाँ। स्विच सर्वर है तो मैं एक ऐसा स्विच करूंगा जिससे जिसके अंदर एक ही पोर्ट हो। ऐसा नहीं खरीदना। एक सर्वर हो, 2 सर्वर हो, आपको कम से कम 24 पोर्ट या फिर 48 पोर्ट की स्विच खरीदना है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर 2 4 सर्वर और आ गए तो इसी से कनेक्ट कर दूंगा। दिस इज नथिंग बट योर स्केलेबल प्लान। गॉट इट? समझ गए आप पूरी इस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यस। एप्लीकेशन ऑफ प्लान? यस। कोई डाउट है इस पर्टिकुलर पीपीटी में या फिर स्लाइड में? नहीं। जब पूछूंगा बता दोगे? यस। उसके बाद आती है लैन के कुछ डायग्राम्स। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स है। इसमें बेसिकली क्या बता रहे हैं, जैसे ये आपकी एक स्विच है, जो स्विच के अंदर आप देखो। लिंक से जो स्विच में जो आप बताया, जो 24 का मान लीजिए, वो जो आप लिंक से, सपोज 4 आप लिंक से, ठीक है, तो उससे आप लिंक से डायरेक्ट प्रिंटर हो गया या सिस्टम हो गया कनेक्टेड कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। जैसे ये आपकी स्विच है, स्विच के अंदर आपने लैन केबल लगाया, जो अभी हमने केबल देखा ना, वो लैन केबल आपको पता है ना कौन सी केबल की बात कर रहा हूँ, जो अभी हमने देखा जस्ट। ओके। दिखाऊं एक बार? हाँ, ये दिखाइए। वाली केबल, ये वाली केबल, ठीक है। हाँ। सो आपने क्या हाँ। किया यहाँ पे, यहाँ पे आपने सिंपल सी काम किया, आपने एक लैन बनाया। कैसे बनाया? एक स्विच आपने खरीदा, उस स्विच के साथ आपने अपनी कंप्यूटर लगा दिया, आपने आपके लैपटॉप को लगा दिया, हियर इज योर लैपटॉप, हियर इज योर कंप्यूटर, हियर इज योर सेकंड कंप्यूटर, एंड आपने एक प्रिंटर को भी लगा दिया। एंड नथिंग बट यू आर कनेक्टिंग है, आपको इंटरनेट भी चाहिए था तो आपने क्या किया, एक राउटर भी लगा दिया। सो दिस इज नथिंग बट टिपिकल एग्जांपल ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर लैन के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये सर्वर बीच में है, सारे क्लाइंट्स उससे कनेक्टेड है, लाइक दैट। ये आपकी सर्वर है, ये आपके सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड है। दिस इज योर सर्वर क्लाइंट मॉडल। लैन के अंदर सर्वर क्लाइंट मॉडल है वाली है। दूसरे पीयर टू पीयर, जो अभी हमने डिस्कस किया, पीयर टू पीयर, दिस इज योर लैन की पीयर टू पीयर। उसके बाद आती है टोकन रिंग। टोकन रिंग बेसिकली रिंग टोपोलॉजी जो हम पढ़ेंगे ना आगे, उसकी टाइप से ऐसे होगा वो बेसिकली। ये भी लैन की ही पार्ट है। टोकन बस, अगेन इसको हम आगे कवर करेंगे। ओएलएस लैन, ओएलएस लैन, ओएरड लैन, क्लाउड बेस्ड लैन, ये सारे लैन की टाइप्स है। वायरलेस लैन इन द सेंस जहाँ पे आप वाईफाई से आपकी नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखे हो, दिस इज योर वायरलेस लैन। सेम आपने स्विच से केबल लगा रखी है अपनी डेस्कटॉप तक, दिस इज योर वायर्ड लैन। क्लियर? और दूसरी एक लैन की, जैसे अगर बात करूं रिंग टोपोलॉजी की,
तो रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे आपकी सर्वर है, सर्वर से यह क्लाइंट से कनेक्टेड है। फिर एक देखो रिंग टाइप ऑफ टोपोलॉजी बना रहा है या फिर रिंग काइंड ऑफ ये पिक्चर बना रहा है। दिस इज नथिंग बट योर रिंग टोपोलॉजी। दिस इज ऑल्सो ए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पिक्चर क्लियर हुआ रजत? इट्स क्लियर। ठीक है। आगे आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, इसको भी समझते हैं। डेफिनेशन क्या रहती है? मेट्रोपॉलिटन मैन कवर मल्टीपल लैंड अक्रॉस सिटी लार्ज कैंपस। ये सेम चीजें हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट कर सकते हो, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस को आप कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट योर मैन। बैंडविड्थ क्या कह रहा है? मैन ऑफर हाई स्पीड बैंडविड्थ देन वन। जो वन है ना, सबसे ज्यादा कौन सी नेटवर्क की स्पीड अच्छा है? लैंड वन और मैन के अंदर कौन सी सबसे ज्यादा स्पीड है? लैन। लैंड। किसके साथ अगर कंपेयर करूंगा तो लैंड की स्पीड ज्यादा रहेगा? पेन के हिसाब से पर्सनल देखो एरिया नेटवर्क लैन कैसे। जो होती है इन कंपैरिजन टू पैन पर्सनल एरिया नेट, सॉरी, इन कंपैरिजन टू मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन कंपैरिजन टू वाइड एरिया नेटवर्क, इन दोनों के साथ अगर कंपेयर करेगा ना तो लैन की स्पीड थोड़ी सी अच्छी रहती है। क्लियर? ओके। सेम केस में अगर मैन की स्पीड तुम देखोगे ना, वो लैन से थोड़ा कम रहता है लेकिन वन से अच्छा रहता है। वन से गुड है लेकिन लैन से बेड है। लैन से थोड़ा कम स्पीड मिलेगा आपको मैन में, लेकिन वाइड वाइड एरिया नेटवर्क से अच्छा खासा स्पीड आपको मिलेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऑफर हाई स्पीड बैंडविड्थ देन वन बट लोअर देन लैन। लैन से थोड़ा कम स्पीड देता है, मेट वन से थोड़ा अच्छा स्पीड देता है। गॉट इट? ओके। यूज केस क्या है? सपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक लोकेशन में आपकी जैसे शादी हो रही है, दूसरी सिटी में आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो। दिस इज काइंड ऑफ मैन। सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल रीजन। मल्टीपल रीजन इन द सेंस एक सिटी में आपकी एक ऑफिस है, दूसरी सिटी में आपकी दूसरी ऑफिस है, आपने सारे लोकेशन को कनेक्ट कर रखा है वाया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। गॉट इट? गॉट इट। एग्जाम्पल्स अगेन, लेट्स गो टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की अगर बात करो, देखो ये एक यूनिवर्सिटी की कैंपस है जो दूसरी एक सिटी में है। यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है। दूसरी लोकेशन गवर्नमेंट बिल्डिंग है। ये तीसरी लोकेशन किसी की घर है। ये चौथी लोकेशन कॉर्पोरेट बिल्डिंग है। सारे आपस में कनेक्टेड है वाया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ गए? ये पिक्चर क्लियर हुआ आपको? हाँ हाँ जी। क्लियर। क्लियर हुआ पिक्चर? हाँ क्लियर हो गया। सेम ये सेम चीजें कह रहा है। ये आपकी एक लान है, ये दूसरी एक लान है, ये तीसरी एक लान है, ये चौथी एक लान है, पांचवी एक लान है। सब आपस में कनेक्टेड है वाया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर आप देखोगे ये दोनों कंपनी ना आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी बना रहे हैं। देख पा रहे हो आप? हाँ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी है। सो लैन एंड मैन और पैन, आप बिल्कुल क्लियर हो? लैन पे नहीं है क्लियर। इसमें सब किसी भी टाइप की क्वेश्चन आएगी यू कैन क्लैप। हाँ करेक्ट। आगे चलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। देखो वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा वाइड एरिया नेटवर्क इज नथिंग बट आवर इंटरनेट। ओके, जिसे हम ग्लोबल नेटवर्क भी कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के क्या पॉइंट्स है? वाइड जियोग्राफिकल कवर। सबसे ज्यादा जो कवर करता है ना एरिया को, वो वार्ड वन ही होता है। वन स्पैन लार्ज एरिया सच एज कंट्री कॉन्टिनेंट कनेक्टिंग मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क। हमने अभी जस्ट पढ़ा मल्टीपल लैन को कंबाइन जब कर दिया क्या बना मेरा? वेन। When नहीं, multiple whenever we are combining multiple LAN, we are creating a man metropolitan area network मैंने बनाया। मैन सॉरी मैन। मैन मैन। Yes. And whenever we are combining multiple metropolitan area network, we create what? वेन। वन। Yes. Right. We create वाइड एरिया। one wide area network. Okay. We create wide area network. So LAN multiple LAN को मैंने कनेक्ट किया, क्या बना मेरी मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मल्टीपल मैन को कनेक्ट किया, मेरी वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। दैट्स इट। सो यहाँ पे वही सेम चीज कह रहा है। वन कैसे बना हुआ है? छोटे छोटे स्पैन लार्ज कवर।
तो छोटे छोटे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को लेके हमने क्या बना दिया, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कनेक्टिंग मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क, छोटे छोटे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को लेके हमने वन बना दिया, वाइड एरिया नेटवर्क बना दिया। की ट्रांसमिशन क्या मेथड कहते हैं, यूज सैटेलाइट, लेजर लाइन एंड अंडर सी केबल टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे मेरे पास एक सिटी है यूएस, दूसरे सिटी है मेरे पास इंडिया, दोनों के बीच बहुत ही जियोग्राफिकल लोकेशन जो है ना, डिस्टेंस है ना, जियोग्राफिक डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा दूरी है। तो इनके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, अंडर सी केबल यूज कर सकता हूँ। वो दिखाऊंगा कैसे दिखता है सी केबल अभी, ठीक है। या दूसरी मेथड क्या हो सकती है, सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकता हूँ दोनों देशों को आपस में। या फिर लेजर लाइट, जिसे हम ओएफसी केबल कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी कनेक्ट कर सकता हूँ एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, राइट। यस। So whenever we are talking about wide area network, we are our transmission media is like satellite, laser light, and undersea cable. Got it? गॉट इट। और नेटवर्क में आपको एक चीज हमेशा सुनने को मिलेगा, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया इन द सेंस, आप एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक जियोग्राफिक लोकेशन से दूसरी जियोग्राफिक लोकेशन को कनेक्शन कैसे कर रहे हो। आपकी कनेक्शन मीडिया कौन सी है, केबल कौन सी है, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, या फिर सैटेलाइट है, या फिर लेजर लाइट है। सो ये जो लेजर लाइट, सैटेलाइट, अंडर सी केबल, हमारी कॉपर केबल, दीज आर नथिंग बट ट्रांसमिशन मीडिया। आपकी जो डेटा ट्रांसमिट हो रही है वो कैसी है, कैसे ट्रांसमिट हो रही है, दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसमिशन मीडिया। गॉट इट। यस। उसके बाद आता है एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस। एप्लीकेशन क्या है, वन एनेबल रिमोट वर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्लोबल बिजनेसेस ऑपरेशन, क्रिटिकल एंड मॉडर्न सर्विसेज। अभी कुछ साल पहले हमारे पास क्या था, कोविड 19 था। कोविड 19 में बेसिकली क्या था, वर्क फ्रॉम होम था। सो वाई द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। एक बेसिकली लेट्स से मेरी कंपनी जैसे दिल्ली में है, मेरी कंपनी आईबीएम, अब मैं तो उड़ीसा में था, ओके, या फिर मैं अपने होम टाउन में था। कैसे, मैं तो जा ही नहीं पा रहा था दिल्ली तक, तो कैसे काम करता था, भाया वीपीएन में कनेक्ट कर रहा था। और वीपीएन कैसे चलता है, वाइड एरिया नेटवर्क से ही चलता है। ओके। सो वाइड एरिया नेटवर्क ओके। की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिमोट वर्क कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन कर सकते हैं, बड़े बड़े देशों को आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मिलिट्री को कनेक्शन कर रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें किसके ऊपर होती है, वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर होती है। गॉट इट। यस, गॉट इट। उसके बाद आते हैं चैलेंजेस इन वन। वन के अंदर ना कुछ दिक्कतें भी है, क्या वो दिक्कत है, लेटेंसी। अगेन व्हाट इज लेटेंसी। स्पीड। लेटेंसी इज एक्चुअली नॉट द स्पीड। स्पीड होती है जिसको आप बेसिकली क्या कह सकते हो, स्पीड इज मेजर्ड इन किलोमीटर, लाइक ऐसे आप मेजर कर सकते हो। लेकिन नेटवर्क में ना लेटेंसी का मतलब होता है रेस्पॉन्स टाइम। ओके। आपने सर्वर को पिंग किया, ओके, जैसे मैं लेट्स फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मैं पिंग कर रहा हूँ 8.8.8 को। 8.8.8 क्या है मेरा, ये 8.8.8 क्या है, गूगल का पब्लिक ऐप, पब्लिक सर्वर है। गूगल की पब्लिक डीएनएस सर्वर है, नॉट गूगल पब्लिक डीएनएस सर्वर। सर्वर, डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर। तो हाँ, हाँ, यस। यहाँ पे मुझे लेटेंसी मिल रहा है, कैसे पता चलेगा कितनी लेटेंसी मुझे मिल रही है, बता सकते हो। लेटेंसी फोर्टी यहाँ पे मुझे वन मैक्सिमम 27। मैक्सिमम लेटेंसी मिल रहा है 27 एमएस, मतलब मिली सेकेंड। एमएस का मतलब होता है मिली सेकेंड। ओके। मैक्सिमम मेरी कंप्यूटर जब बात कर रहा है गूगल डीएनएस से, मैक्सिमम लेटेंसी 27 मिलीसेकंड मिल रहा है, सॉरी मिनिमम 27 मिल रहा है, मैक्सिमम 126 मिलीसेकंड मिल रहा है, और एवरेज 58 मिलीसेकंड मिल रहा है। दैट्स मीन्स मैं जैसे बात शुरू कर रहा हूँ गूगल के डीएनएस के साथ, हम दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन की स्पीड है या फिर कम्युनिकेशन की लेटेंसी है विच इज 58। मतलब मैं आपको हेलो कहा, मैंने कहा हाय रजत, आपको आपने सुना, तो मैंने बोला और आपने सुना, इन दोनों के बीच जो टाइम होती है ना उसे लेटेंसी कहा जाता है। समझ गया। यस। लेट्स टेक एन another example. Let this example make more clear. जैसे मैंने गूगल क्रोम लेट से ओपन किया, आई एम ओपनिंग गूगल क्रोम, यहाँ पे जाके मैंने सर्च किया, लेट्स आई एम सर्चिंग instagram.com। इंस्टाग्राम मैंने सर्च किया, जैसे मैं एंटर दबाऊंगा और जब तक वो वेब पेज खुलेगा, ठीक है,
उन दोनों के बीच जो टाइम रहती है, जैसे मैंने एंटर किया, ये बफरिंग हुआ, देखो यहाँ पे घूम रहा है, घूमने के बाद ये पेज ओपन हुआ। सो ये घूम रहा है जितना टाइम, और पेज मुझे जब तक नहीं दिखा, दिस टाइम इज नथिंग बट योर लेटेंसी। आपने पिंग किया, आपने हाय बोला, लेकिन वहां से जब तक आपके पास रेस्पॉन्स आया, दिस टाइम इज कॉल्ड योर रेस्पॉन्स टाइम और लेटेंसी। समझ गए? यस यस। बिल्कुल क्लियर लेटेंसी क्या होता है? यस यस। सो व्हाट इज लेटेंसी? रेस्पॉन्डिंग टाइम। यस, गॉट इट। देन आफ्टर होता है सिक्योरिटी रिस्क। जैसे आपने पढ़ा होगा, LAN इज द मोस्ट सिक्योर नेटवर्क, सो लाइक दैट WAN इज द वल्नरेबल नेटवर्क। WAN में बेसिकली क्या रहती है, आपकी सारे वायरसेस वगैरह वो इंटरनेट में ही रहती है, हैकर बहुत सारे इंटरनेट में रहती है, सो इसीलिए कहा जाता है इंटरनेट सिक्योर नहीं है। ओके, सो दैट्स द पॉइंट, सिक्योरिटी रिस्क, लोअर स्पीड कंपेयर टू लैन। लैन और मैन के मुकाबले ना, WAN में बहुत ज्यादा स्लो मिलता है, हमें बहुत ज्यादा स्लोनेस मिलती है मैन में, ओ सॉरी WAN में, वाइड एरिया नेटवर्क में। देन चेंजेस फेसिंग एंड बाय वन, ये सारे चैलेंजेस ना हमें वन में फेस करना पड़ता है, लाइक लेटेंसी, सिक्योरिटी, लोअर स्पीड एंड मल्टीपल थिंग्स वी फेस इन लैन। गॉट इट? सॉरी अगेन। जो हमारी वन होती है ना, वन में हमें लेटेंसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सिक्योरिटी, बेसिकली वन हमें पता है इंटरनेट सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे अनऑथराइज एप्लीकेशन चलते हैं, बहुत सारे हैकर भी बैठे हुए हैं, अनऑथराइज साइट्स भी हैं, व्हिच इज नॉट सिक्योर फॉर अस। एंड लोअर स्पीड, इंटरनेट में हमें लोअर स्पीड मिलेगा इन कंपेरिजन। अगर मैं वन को कंपेयर करूँ मैन के साथ एंड लैन के साथ, तो वाइड एरिया नेटवर्क ना बहुत ही स्लो है इन कंपैरिजन टू मैन एंड लैन। ओके, एंड दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वन। क्लियर? यस। सो अभी तक आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पैन किसे बोलते हैं, लैन किसे बोलते हैं, एंड वन किसे बोलते हैं, एंड मैन किसे बोलते हैं, एंड देयर यूज कैसे, कितनी स्पीड रहती है, रेंज कितनी रहती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या रहती है, हमें पूरा पता चल गया होगा आपको, आई होप सो। यस। यस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपकी काइंड ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क की स्ट्रक्चर है। देखो, यहाँ आपकी एक इंटरनेट की आईएसपी, ये आपकी पूरी सिटी है, ये आपकी सिटी है, ये आपके गवर्नमेंट ऑफिसेस है, ये दूसरी लोकेशन की एंटरप्राइजेस है, कैंपस है। दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट से कनेक्टेड है दोनों। सो दिस इज नथिंग बट, लेट्स से इसको ले सकते हो आप, इंडिया की कनेक्टिविटी है, ये यूएस की कनेक्टिविटी है, दोनों कैसे कनेक्टेड है वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क कुछ नहीं है, मल्टीपल नेटवर्क है इसके बीच सब, और सब आपस में कनेक्टेड है। गॉट इट? ओके। शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस फॉर। उसके बाद आती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क की बेसिकली अगर यूज केसेस में आपको बताऊं, कनेक्ट विद इन फ्यू मीटर्स, जैसे लेस देन 10 मीटर के अंदर आप इसे कनेक्ट कर सकते हो अराउंड इंडिविजुअल। एक एक ही पर्सन एट अ टाइम इसे यूज कर पाएगा। ठीक है, जैसे आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, तो आप ही यूज कर पाओगे। ठीक है। सो कॉमन टेक्नोलॉजी क्या रहती है इसकी? ब्लूटूथ रहती है, इंफ्रारेड रहती है, एनएफसी रहती है। एनएफसी आपने देखा होगा, पेमेंट करने के लिए यूज होता है आजकल। एनेबल सीमलेस कनेक्टिविटी, लाइक विद इन है, आपकी पॉकेट में मोबाइल है, आपने हेडफोन लगाया, चलेगा, ठीक है। लेकिन आपने रूम पे रखा है अपनी मोबाइल, और छत के ऊपर बैठे हुए हो अपनी हेडफोन लेके, वही चीज वायरलेस हेडफोन काम नहीं करेगा, क्योंकि रेंज ही नहीं है, इतना ज्यादा कवरेज कर ही नहीं सकता वो इतना। एवरीडे एप्लीकेशन क्या है? पैन सपोर्ट सिंक्रोनाइज फिटनेस ट्रैकर, लाइक आपने वॉच पहन रखा होगा, वॉच अभी का आजकल की जो वॉच आते हैं जिसे हम स्मार्ट वॉच कहते हैं, उसके अंदर क्या रहती है, वो मोबाइल के साथ ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है। और आप जितने स्टेप चलते हो, या फिर कितने बार पानी पीते हो, कब आपको फिटनेस की पूरी जानकारी आपको आपके वॉच में मिल जाता है। कैसे? वाया द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन, मोबाइल में आपकी एप्लीकेशन होगा, पूरी ट्रैकिंग वो मोबाइल से, घड़ी से आपकी मोबाइल को देता होगा। फिर शेयरिंग फाइल्स इन बिटवीन गैजेट्स, आपकी मोबाइल में कोई फोटो पड़ा हुआ है, आप वाया पर्सनल एरिया नेटवर्क आप किस में दे सकते हो? अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में दे सकते हो। स्मार्ट होम ऑटोमेशन, स्मार्ट होम ऑटोमेशन इन द सेंस, जैसे आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आप कहते हो हाई एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट, हाई एलेक्सा टर्न ऑफ द फैन, ये कह सकते हो। या फिर आपने 2 बार क्लैप किया, आपकी फैन चलना शुरू हो जाएगा, 2 बार आपने क्लैप किया, फैन बंद हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग अबाउट योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस। और पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो सबसे ज्यादा यूज केस आती है, वो आईओटी में आती है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आती है। जैसे बहुत सारे कंपनी में आपने देखा होगा जो वॉशिंग बेसिन होती है जहाँ पे आप हाथ धोते हो डिनर करने के बाद, लंच करने के बाद, बहुत सारे कंपनी में ऐसे होते हैं आप जाके खड़े हो जाओगे अपने आप पानी चलेगा, जैसे आप साइड हो जाओगे पानी बंद हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट ब्लूटूथ सेंसर बेसिकली उसके अंदर होते हैं, बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस उसके अंदर रहते हैं और वो अपने डेटा सिंक करते रहते हैं रियल टाइम में। सो दिस इज पॉसिबल वाया पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क की मदद से आप डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप गेट के सामने जा रहे हो, गेट अपने आप खुल जा रहा है। सो दिस इज नथिंग बट योर पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएटेड बाय आईओटी एनवायरनमेंट। गॉट इट? वो पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं है, वो आईओटी क्रिएट करता है। देखो पर्सनल एरिया, आपने कहा आईओटी। आईओटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट कैसे कर रहा है? वो अपनी खुद की नेटवर्क ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा होगा या फिर आरएफ सिग्नल से बात कर रहे होंगे हर एक डिवाइस अपने से। जो सेंसर होते हैं ना, आईओटी क्या होता है, मल्टीपल सेंसर के काम करते हैं वहां पे। तो सेंसर सारे आपस में कैसे बात कर रहे होंगे भाई? ब्लूटूथ काम कर रहे होंगे या फिर आरएफ से काम कर रहे होंगे। सो दिस ब्लूटूथ एंड आरएफ बिलोंग्स टू द पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके। गॉट इट? चारों टाइप के हाँ। नेटवर्क आप समझ गए बिल्कुल। So we said to this indirectly create a PAN, personal area network. इट्स डायरेक्टली क्रिएट ए पैन। दिस इज ए पैन। Okay. दिस इज द आईओटी एग्जांपल किसकी है? पैन की एग्जांपल है आईओटी। हाँ. पर्सनल एरिया Okay. नेटवर्क की हाँ. एग्जांपल है आईओटी। Okay. Got it. दिस इज नॉट इनडायरेक्टली क्रिएटेड, दिस इज डायरेक्टली क्रिएटेड। ओके, Okay. लेट्स गो। ये आपकी काइंड ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क की कुछ डे टू डे डायग्राम्स है। जैसे आपकी ये लैपटॉप है, आपने वाईफाई से मोबाइल, हेडफोन, वायरलेस माउस, टेलीफोन, बो प्रिंटर और टैब्स को कनेक्ट कर रखा है। दिस इज नथिंग बट योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। हियर द सेम थिंग। ओके, Okay. so that's all for this today's session. If you have any doubt let me know। कोई डाउट है, किसी No भी टाइप clear. की डाउट है, देन यू कैन आस्क। No clear. ओके, सो कल आपके लिए बेसिकली क्या रहेगी, आपकी जो लैन है, आपने आज जो जो पढ़ा बेसिकली मैं थोड़ी सी रिकैप कर देता हूँ। हमने कहाँ तक अभी तक शुरू कर लिया और कहाँ तक पहुंच गए। हमने नेटवर्क देख लिया क्या होती है। ओके, इंट्रानेट देख लिया क्या होती है, इंटरनेट देख लिया क्या होती है, एक्स्ट्रानेट देख लिया क्या होती है। उसकी नोट्स भी शायद आपको मिल गए होंगे, राइट? Yes. इसकी भी नोट्स आपको कल ही मिल जाएगा। मैं टीम से एक बार बात कर लूंगा। और उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, दोनों साइट को कैसे हम कनेक्ट करते हैं। जैसे साइट वन आपकी है, साइट टू आपकी है, दोनों साइट को आप कैसे रीचेबिलिटी प्रोवाइड करोगे। बहुत सारे कौन सी टाइप के नेटवर्क में होते हैं वो देखेंगे। फर्दर सेशन में अब मोर इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। लेकिन जितना अभी तक आपने पढ़ा ना, कल आप एक बार रिकेप कराओगे, आप मुझे समझाओगे आपने कैसे। जैसे मैंने आपको पूछा लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, you should explain like I am your HR, you are my let's say जॉब सीकर। ठीक है, आपको मैं एज एचआर पूछूंगा, आप मुझे आंसर करोगे कि हाँ लोकल एरिया नेटवर्क ये होता है, मुझे फुल्ली एक्सप्लेन करोगे विथ इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, नहीं, थोड़ी बहुत आपको भी